Let us start today's class. So in yesterday class, I explained necessary conditions for Lagrange multiplier. A small recap. So if you have Lagrange functions, you can write Lagrange function Lx lambda is equal to fx minus lambda gx. So we are studying now constant optimization. So there are two methods. Graphical method was one of the methods for constant optimization problem, and second method is Lagrange multiplier method. So here what we do, we consider the Lagrange function. Here x belongs to Rn. So the necessary conditions are del L over del x is equal to 0 and del L over del lambda is equal to 0. So keep in mind x means x1, x2, xn. If you have x is x1, x2, xn, so here you have to take del L over del xi. And lambda depends number of constants. If you have m constants, so you will be using m lambda multipliers. This is called Lagrange multiplier. यहाँ तक क्लियर है? कल लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, जिन लोगों ने क्लास नहीं करी होगी देख लिया होगा उन्होंने. देख लिया सर. Yes, sir. चलो. So now I will talk about sufficient condition. These are the necessary condition because by this we got stationary points. Now sufficient conditions. Sufficient condition for GNLPP with m constants. With m, and I am assuming that they are less than number of unknowns. M constants. So this thing we have done already. That lambda, these assumptions are already there. Suppose lambda is equal to lambda 1, lambda 2, because I am taking m constant, so you will be having m multipliers. Let L lambda is equal to these be the m Lagrangian multipliers. Lagrange's multiplier. And L x lambda is your Lagrange function. So because you have m, so I will take I is equal to 1 to m lambda I hix. These are your constants, which I am considering by taking gix minus c is equal to 0, where hix, they are the constants. So we write by taking the right hand side to the left hand side. It is equal to 0. I is running 1 to m. So these are our conditions already given. And del L over del xj is equal to 0. Del L over del lambda I is equal to 0. These are the necessary conditions, where j is 1 to n. J आपके variables. Now, suppose they all have, let L fx and hx. They suppose they all have partial derivatives of, they all have first order and second order partial derivatives. First and second order partial derivatives. Okay. With sufficient condition के लिए I will have to find first and second order. And with respect to, of course, decision variables. So understood है, decision variables के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ.
लैम्डा की बात नहीं कर रहा, विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन वेरिएबल्स। So I will assume one matrix V del to L x lambda over del x I del x j. This is a matrix n cross n. क्या है ये? This is a collection of all second order derivative of Lagrange function with respect to decision variables. जैसे del to L over del x1 x2, जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हो मान ली तो del to L over del x1 स्क्वायर, del to L over del x1 del x2, del to L over del x2 del x1, del to L over del x2 स्क्वायर। जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स है उसके रेस्पेक्ट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप लिखें और उसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इट विल बिकम n क्रॉस n मैट्रिक्स। सो लेट V इज इक्वल टू बी द मैट्रिक्स ऑफ second order partial derivatives. Second order partial derivatives. Okay. Yes, sir. With respect to the decision variables of Lx lambda. Let so it is n cross n मैट्रिक्स बनेगी आपकी, है ना? आप देख सकते हैं जितने वेरिएबल्स हैं उतने y की बनेगी। जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 तो मैट्रिक्स क्या बनती? del to L over del x1 स्क्वायर, del to L over del x1 del x2, del to L over del x2 del x1, Del 1, है ना? इस तरीके से del x2 square. तो 2/2 की, तो in this form this matrix will form. अगर 3 है तो 3/3 and so on. So this is this matrix. And let U is again a matrix taking Hij. Hi तो आपके फंक्शन है, it will become m cross n, where this Hij means what? You are differentiating your constant जो आपका Hix है with respect to del xj, है ना? del xj के टर्म में करेंगे इसे। I आपके constants है 1 to m and j they are 1 to n, 1 to n. So it will also form a matrix. जैसे अगर हम h1 लेंगे, सपोज जैसे h1 आपका होता तो h1x क्या होगा? कुछ x1 plus x2 minus 30, अगर 2 वेरिएबल्स है ना? तो ये क्या हो जाएगी? del h1 over del x1 del h1 over del x2, ये एक बनेगी ऐसे। सिमिलरली आप h2 जितने भी एक कांस्टेंट्स हैं सबको डिफरेंशिएट करके जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे it will become m cross n matrix, that is U. Now define the square matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं by taking all these B and H. इसको डिनोट करूंगा HB से, HB. It is called actually Hessian bordered matrix. This will be what? ध्यान से देखें, इसकी एंट्रीज क्या है? 0 U transpose and V, where 0 is a null matrix of M cross M order. U is a matrix this M cross N. अगर U ट्रांसपोज किया तो हो जाएगा N क्रॉस M का, एंड V is a matrix जो आपने ये निकाली है N क्रॉस N की, ठीक है? तो ये जो आपने एक मैट्रिक्स बनाई है एक्चुअली इट इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स, इट हैज अगेन 4 सब मैट्रिक्स, है ना? ये एंट्रीज जो है ये दे आर नॉट एलिमेंट, दे आर द मैट्रिसेस। तो टोटल कितने बाई कितने की बनी है? रोज कितनी हो गई देखिए, M और N, तो M प्लस N रोज है और कॉलम M कॉलम और N कॉलम, तो इट इज M प्लस N
ओके, देख सकते हैं, क्योंकि रोज कितनी देखिए 0 आएंगे यहाँ पर, m रोज है और u की m रोज है, तो m रोज ये है और ऐसे नीचे n रोज है, तो रोज टोटल कितने हो गए m प्लस n, कॉलम वो भी m प्लस n। सो दिस HB I will construct by taking 0 u transpose v, which is m plus n cross m plus n order matrix. This is called where this 0 m cross m is a m cross m null matrix. Null matrix. Null matrix means whose entries are 0. So the matrix HB, this is called the bordered Hessian matrix. Bordered Hessian matrix. Okay. तो जो sufficient condition है वो इस मैट्रिक्स से जाएगी. Then the sufficient condition for maximum or minimum at the stationary points are given by as follows. First thing what I will consider some point. जब हमें चेक करना होगा तो फर्स्टली वी नीड पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट को हम मान के चल रहे हैं कि वी गॉट सम स्टेशनरी पॉइंट्स बाय टेकिंग नेसेसरी कंडीशंस. तो सपोज यू हैव x नॉट लैम्डा नॉट एज अ स्टेशनरी पॉइंट, कंसीडर x नॉट लैम्डा नॉट. अब x नॉट का मतलब अंडरस्टूड है x1 x2 xn, लैम्डा नॉट मींस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m, कुछ फिक्स पॉइंट निकल के आ गया आपके पास. सपोज दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट, be the stationary point of Lx comma lambda. Let H not be the corresponding bordered Hessian matrix. Corresponding bordered Hessian matrix means what? कि जो x नॉट लैम्डा नॉट है ये पॉइंट्स हमने इस पे सेटिस्फाई करा दिए, ठीक है ना. डिफरेंशिएट किया आपने से, जैसे ये v था और उस पॉइंट को रख दिया जो पॉइंट है वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगी इसकी एंट्रीज, ये एक स्केलर एक रियल नंबर मैट्रिक्स बन जाएगी. दे विल बी हैविंग सम रियल नंबर्स एट द पॉइंट. तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है उसे मैंने एच नॉट बी कह दिया है. क्लियर भाई, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. मोहम्मद Yes, sir. शाहरुख प्रेजेंट है. 99 MB 07 ये मोहम्मद शाहरुख का नाम दिखता है, अक्सर होते नहीं है. एक बार मैंने इनका नाम कॉल किया था. बिलाल अहमद. Yes, sir. क्लास में है आप? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक बात जो बताई? Yes, sir. चलिए ठीक है. सो एस नॉट बी द करस्पॉन्डिंग बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स. ठीक, देन कहाँ पर है? कंप्यूटेड एट एक्स नॉट, बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स कंप्यूटेड एट एक्स नॉट, computed at x naught. Then x naught is a, अब यहाँ पे x naught क्या है, मैक्सिमम मिनिमम है, वो हमारा डिसाइड करेगा. Then x naught is a first case I am taking a maximum point of maxima if starting, this is the important thing, ये एल्गोरिथम है इसकी पूरी ना, this is the important. अभी पॉइंट नॉट एक्स नॉट जो है आपका वो मैक्सिमा या मिनिमा है, कैसे चेक करेंगे? दिस ए पॉइंट स्टेप आई एम राइटिंग, तो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल माइनर
प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m + 1, मतलब जो आपका मैट्रिक्स बनेगा ये n + m क्रॉस n + m का, इसका हम प्रिंसिपल माइनर लेंगे 2m + 1 ऑर्डर का। द लास्ट n - m प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ H0 B form an alternating sign pattern। क्या करना है भाई? आई विल टेक अ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m। प्रिंसिपल माइनर क्या होता है पता है किसी को? मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स माइनर्स निकालते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल माइनर? माइनर जो हम निकालते हैं बताइए, किसी मैट्रिक्स के आप माइनर्स और कोफैक्टर्स लेते हैं तो प्रिंसिपल माइनर निकालते हैं। सर माइनर MIJ जो होगा वो उस रो और उस कॉलम छोड़ के हाँ। बाकी जो उसका डिटर्मिनेंट होगा। हाँ प्रिंसिपल का पता नहीं हाँ, सर। प्रिंसिपल मतलब जो मेजर वो आएगा आपका, मतलब हाईएस्ट। छोड़िए बात। हाँ जी, हाँ हेलो, एक कॉल आ गई। यस, सो वी विल टेक प्रिंसिपल माइनर्स मींस जो आपके पास ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, उस ऑर्डर का हम लेंगे माइनर। ठीक है, कि माइनर तो आप ले सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल माइनर हुआ करस्पॉन्डिंग टू मेन रो, और उसमें अगर हम लास्ट n - m प्रिंसिपल माइनर ले लें H0 B का, दिस फॉर्म एन अल्टरनेटिंग साइन पैटर्न। तो लास्ट n - m जो प्रिंसिपल माइनर्स में, एक मिनट स्ट्रेस, ठीक है। So the last n - m principal minors of S0 B form an alternate sign pattern starting with -1 to the power n plus m या m plus m। क्या चेक करेंगे हम? लास्ट n - m प्रिंसिपल माइनर्स चेक करेंगे। n - m मीन्स अगर आपके पास n है 5 है, m 3 है मान लीजिए, तो 5 - 3 2 प्रिंसिपल माइनर्स निकालेंगे हम, और उसके साइन अगर अल्टरनेटिंग आ रहे हैं स्टार्टिंग विद दिस साइन, जैसे अगर 5 + 2 7 है तो माइनस से स्टार्ट होके नेक्स्ट प्रिंसिपल माइनस प्लस फिर माइनस, अगर दे आर कमिंग इन दिस फॉर्म तो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। आई विल टेक अ प्रॉपर प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाट इज दिस मीन, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली देयर, है ना। अब जस्ट राइट इट हियर, मिनिमा को लिख दूंगा, फिर एक प्रॉब्लम होगा उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and B, then this is a point of maxima and X0 is a point of minima if starting with principal minor of order 2m + 1, the last n - m principal minors of H0 B have the sign of -1 to the power m। ठीक है, तो जो लास्ट प्रिंसिपल माइनर्स हैं इसमें, अगर उन सबके साइन क्या है, -1 की पावर m। अगर m आपके पास 5 कांस्टेंट ऑड कांस्टेंट्स है तो सबके साइन नेगेटिव हो, अगर इवन कांस्टेंट हो सबके साइन पॉजिटिव। इफ इट इज हैपनिंग देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम।
Okay, so it is a point of maxima, it is point of minima. It is the condition for this sufficient condition. Sufficient means क्या होता है कि it means कि अगर stationary point, extreme point may be possible without satisfying the conditions, है ना? Sufficient means what? ये sufficient condition है. Sufficient means that so these are only sufficient condition. Sufficient conditions. That means a stationary point अगर सेटिस्फाई कर रही है तो जरूर होगा, अगर नहीं कर रही है तो वी कैन नॉट से कि नहीं होगा, है ना? तो स्टेशनरी पॉइंट मे बी एन एक्सट्रीम पॉइंट, मे बी एन एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वही ऑप्टिमम पॉइंट विदाउट सेटिस्फाइंग above conditions. नहीं कर रहा तब भी वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट हो सकता है. एक्सट्रीम इज ऑप्टिमम पॉइंट. सो जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम एक है आपकी प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम वन पेज 830 पर प्रॉब्लम की भी है, उसमें से आप देख सकते हैं. ओके, तो obtain the set of necessary and sufficient conditions. ये प्रॉब्लम है, देखिए कितना टाइम है. हाँ टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम इसमें बड़ी होती है. obtain the set of necessary and short में लिख दे रहा हूँ, necessary and sufficient conditions for the following LNPP. इस प्रॉब्लम से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा. एक प्रॉब्लम है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 8x2 प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 12x3 प्लस 200. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है आपको, नॉन लीनियर कैरिंग 2 डिसीजन वेरिएबल्स एंड आई एम टेकिंग अभी वन कांस्टेंट ले लेते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम इजी करने के लिए. यू हैव ओनली वन कांस्टेंट दैट 3 है यहाँ पे, सॉरी x1 x2, हाँ ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं एंड वन कांस्टेंट and of course they are non-negative. So here you can see m is 1. प्रॉब्लम्स आए तो साइड में पहले लिख लीजिए, m is 1 and n is 3. ठीक है, तो we know that जो बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो 4x4 की बनेगी, m plus n ऑर्डर की. सो यहाँ पे हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन डिस्कस करनी है. तो L तो आई कैन फाइंड हियर, L इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 and because only one constant है तो I can take lambda. 2 होते तो lambda 1 lambda 2. So it will be what? fx minus lambda. So 2x1 square minus 24x1 plus 2x2 square minus 8x2 plus 2x3 square minus 12x3 plus 1200 minus lambda times of x1 plus x2 प्लस x3 माइनस 11. यू नो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड को माइनस लिख के 0 लिख, माइनस 11. दिस इज योर लैग्रेंजियन फंक्शन. तो नेसेसरी कंडीशंस तो आप निकाल सकते हैं. तो यू हैव del L over del x1 is equal to 0, del L over del x2 is equal to 0, del L over del x3 is equal to 0 and
del L over del Del L, ठीक है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। इसको आप करेंगे तो निकाल डायरेक्ट देख सकते हो, 2 इट इज कमिंग 4x1 minus 24 minus lambda is equal to 0। विद रेस्पेक्ट टू 2 किया तो 4x2 minus 8 minus lambda is equal to 0। with respect to third, so 4x3 minus 12 minus lambda is equal to 0, and this is your constant equation, so you have x2 plus x3 minus 11। ठीक, इसे हम सॉल्व करेंगे सिस्टम को। अब देखिए, तो सॉल्व अभी मैं सॉल्व तो आप आई बिलीव यू कैन सॉल्व। यहाँ पे क्या है देखिए, x1 x2 x3 लैम्डा, 4 अननोन्स हैं, 4 इक्वेशंस है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। सॉल्विंग में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या जैसे लैम्डा की वैल्यू निकालिए यहाँ से 4x1 प्लस 24 यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन x1 x2 बन जाएगी। फिर इनको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल वैल्यूज आएगी यहाँ रख देंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग, ठीक, सॉल्व कर लेंगे भाई, इसे सिस्टम इक्वेशन है ना। Yes, sir. देखो इजी इक्वेशन है सब। ये लैम्डा x1 की वैल्यू निकल आएगी। देखिए लैम्डा क्या करना है, यहाँ से x1 निकाल दो लैम्डा के टर्म में, यहाँ से x2, यहाँ से x3 और फिर उठा के यहाँ रख दीजिए। तो इससे क्या निकल आएगा, लैम्डा निकल आएगा, है ना। बस इजी कैलकुलेशन है। तो आफ्टर सॉल्विंग आपका जो पॉइंट आ रहा होगा x0, जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट मान लें, x1 x2 x3, इट इज कमिंग 6 2 3, और लैम्डा जो है इसमें वैल्यू 0 आएगी, लैम्डा यहाँ 0 आ रहा होगा। तो आई गॉट दिस स्टेशनरी पॉइंट। तो नेसेसरी कंडीशन से वी गॉट अ पॉइंट। नाउ द पॉइंट के वेदर दिस विल मिनिमाइज द फंक्शन और मैक्सिमाइज, अब हमें चेक करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पॉइंट। सो फॉर दैट आई विल अप्लाई सफिशिएंट कंडीशंस। नाउ सफिशिएंट कंडीशंस कम्स, सो द सफिशिएंट कंडीशंस नाउ the sufficient conditions for the stationary point 6 2 3 to be मिनिमम। अब देखो क्योंकि ये मिनिमम की प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 बार चला गया। अच्छा चलो, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर ये पॉइंट हमारा मिनिमाइजेशन का हो गया तो वी आर डन। तो ये अगर पॉइंट मिनिमम होगा, पहले मिनिमम पे चेक कर देंगे कि अगर मिनिमम पे क्या, अगर ये मिनिमम वाला पॉइंट होगा तो इट विल सेटिस्फाई दिस बी, है ना। तो इफ इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, टू बी अ मिनिमम इज दैट बोथ। अब इसका कंडीशन क्या थी, देखिए कंडीशन थी हमारे पास माइनर के लिए कि प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m+1, है ना, स्टार्टिंग विद दिस द लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स। लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स का मतलब कि जो हम लास्ट n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स निकालेंगे, तो n माइनस m प्रिंसिपल माइनर्स कितने हुए यहाँ पे, n कितना है 3 और m है 1, तो लास्ट का मतलब क्या था 2 होगा, है ना। इज दैट लास्ट n माइनस m 3 minus 2 is 3 minus 1 is equal to 2. So the last 2 minors, और उनके ऑर्डर क्या होंगे, देखिए ऑर्डर क्या था, ऑफ ऑर्डर स्टार्टिंग विद ऑर्डर 2m+1, 2m+1 ऑर्डर से शुरू करेंगे। तो पहला ऑर्डर क्या होगा 2 into 1 + 1 3, है ना, स्टार्टिंग विद दिस ऑर्डर। तो क्या हो गया 2m+1 का मतलब ऑफ ऑर्डर्स, तो 2m+1 कितना हो गया 3, तो del 3 एंड del 4। del 4 से ज्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी आपकी 4/4 की। तो इसके जो माइनर्स होंगे प्रिंसिपल माइनर या तो 1/1 2/2 3/3 4/4 मैक्सिमम इस ऑर्डर के हो सकते हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल माइनर्स निकालने हैं वो क्या निकालने होते हैं, लास्ट n माइनस m, तो 2 माइनर्स हुए। अब 2 माइनस कौन कौन से हुए, del 3 del 4। प्रिंसिपल माइनस क्या होगा del 1 del 2 del 3 del 4, ऐसे लिखेंगे, है ना। del 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर। तो फर्स्ट ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर क्या होते हैं, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है तो जो फर्स्ट एंट्री है वही प्रिंसिपल माइनर फर्स्ट ऑर्डर, हर एक एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर होता है ना। del 2 क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं del 1 कह रहा हूँ तो del 1 का मतलब प्रिंसिपल माइनर ऑफ 1 ऑर्डर। तो 1 ऑर्डर के क्या है यहाँ पर 1 भी है 2 3, ये सब प्रिंसिपल माइनर है 1 ऑर्डर के। इफ आई एम टेकिंग del 2
तो डेल 2 का मतलब आई एम टेकिंग 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो फिर से माइनस क्या क्या होगा 1 2 4 5 1 3 4 6 एंड सो ऑन, जितनी पॉसिबल 2 ऑर्डर है। 3 ऑर्डर का मतलब ऐसे Complete. 3 by 3 कंप्लीट है ना। सो हेयर आई विल टेक, फिर इस पर माइनस ऑफ ऑर्डर डेल 3 एंड डेल 4, क्योंकि हमें कितने लेने हैं n माइनस m लेने हैं, 2 लेने हैं, तो 2 कौन से डेल 3 डेल 4 आउट ऑफ 4 शुड बी। तो ये क्या होने चाहिए, माइनर के लिए क्या था, शुड बी ऑफ साइन -1 to power m. m 1 है, तो क्या होना चाहिए नेगेटिव, देखो शुड बी -1 to the power 1 is equal to -1, that means नेगेटिव। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब मैं डेल 3 निकालता हूँ, डेल 3, तो डेल 3, अब इसकी पहले अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म करें, देखो हाँ, इसकी अगर आप डेल 3 निकालेंगे तो डेल 3 में क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म करो इसकी जरा, अभी डेल 3 बाद में। तो इसकी जो हम ब्लॉक मैट्रिक्स बनाएंगे एच बी, तो एच बी क्या होगा बनाते हैं जरा, क्या था भाई 0 होना चाहिए m क्रॉस m ऑर्डर का, तो m कितना है यहाँ पे 1 1 और n 3 है ना। 3 0 इज 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, तो 0 हो गया। देन नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, क्या थी आपके पास u था, u u क्या था डेल h ओवर डेल x1 डेल h ओवर डेल x2 डेल h ओवर डेल x3। u का ऑर्डर क्या बताया था, देखिए u का ऑर्डर था m क्रॉस n, m m का by n. मतलब 1 क्रॉस 3 है ना, तो u किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3, यानी कि एक रो 3 कॉलम, ये आ गए ना। ये Yes, आपकी हो गई सेकंड ब्लॉक, जो ब्लॉक था, और यहाँ पे क्या होगा इसका ट्रांसपोज, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा कॉलम में, तो डेल h ओवर डेल x1 डेल h ओवर डेल x2 डेल h ओवर डेल x3, ये आ गया आपका u ट्रांसपोज। तो हमारी मैट्रिक्स जो थी एक बार बता दे रहा हूँ फिर से, वो ये थी 0 u u ट्रांसपोज और v का ऑर्डर क्या था, v वाज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है m ना, cross. और v था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 by 3 की मैट्रिक्स बनेगी, डेल 2l ओवर डेल x1 स्क्वायर डेल 2l ओवर डेल x1 डेल x2 डेल 2l ओवर डेल x1 डेल x3। ओके देखिए Yes. ये ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, ब्लॉक मैट्रिक्स है ये इस तरीके से, तो ये 4 मैट्रिक्स है 1 2 3। सेकंड डेल 2l ओवर बताइए Del डेल x2 del x2, x1 यस del x1 यस डेल 2l ओवर डेल x2 स्क्वायर del x2 का whole square डेल x2 डेल x3 है ना, सिंपल है बिल्कुल। del सिमिलरली x2 del x3 डेल x3 डेल x1 है ना, del x3 del x1 यस del एंड x3 del x2 यस del डेल x3 whole x3 square डेल x2 या डेल x2, क्योंकि कंटिन्यूअस मान रहे हैं हम तो किसी को भी ऑर्डर में लिख सकते हो। और ये लास्ट del x3 whole square ये वैसी एंट्रीज है, फर्स्ट है ये डायगोनल में 1 1 2 2 3 3, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 है ना, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी देखिए 4 by 4 की ना, ये आ गई मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो आप वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं इसकी इजीली, क्यों आपके पास एल भी है, यू हैव एवरीथिंग हियर। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखिए 0, अब डेल एच ओवर डेल x1 कितना है देखिए 1 1 1 है सबके कोएफिशिएंट, तो क्या जाएगा ये 1 1 1 1 1 1 है ना, और इसका कॉलम में भी 1 1 1। अब डेल 2l ओवर डेल x1 स्क्वायर हाउ मच, एक वैल्यू लिख देते हैं, तो डेल 2l ओवर डेल x1 कितना था 4x1, फिर दोबारा करा क्या आ जाएगा 4 है ना। व्हाट अबाउट डेल 2l ओवर डेल x1 डेल x2 0 है ना, विद रिस्पेक्ट टू 2 गया इसको, ये रहा डेल ओवर डेल yes sir 0 0 तो 0, सिमिलरली 0, ऐसे ही ये आपके पास 0 4 0 0 0 ये आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये आपकी ब्लॉक yes मैट्रिक्स sir है। नाउ आई विल फाइंड, अब डेल 3 निकालते हैं, तो इस ब्लॉक मैट्रिक्स से आई विल फाइंड डेल 3। तो डेल 3 क्या बताया भाई, डेल 3 इज द प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर थर्ड। तो प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर थर्ड का मतलब क्या हुआ कि यू विल टेक द फर्स्ट
फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंसिपल होगी। तो फर्स्ट वाली कौन सी हुई, ये जो फर्स्ट हम लेते हैं इट इज प्रिंसिपल। वैसे तो 3 by 3 कितनी बनेगी, देखिए आई कैन टेक फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई कैन टेक फर्स्ट सेकंड फोर्थ, आई कैन टेक सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके चॉइसेस हैं आपके पास। लेकिन थर्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, व्हेन यू आर टेकिंग द फर्स्ट 3 एंट्रीज, तो इट इज 0 1 1 1 4 0 1 0 4। क्लियर है भाई? प्रिंसिपल मीन्स द वेरी फर्स्ट एंट्रीज। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इट इज कमिंग -8, तो लेस देन 0 आ रहा है, देखो ठीक है ना। क्या आना चाहिए कि ऑल शुड बी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आया। अब निकालूंगा मैं del 4, तो del 4 विल बी व्हाट। अब del 4 जो होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर होता है वो क्या हो जाता है, द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, क्योंकि 4/4 का तो एक ही माइनर है यहाँ पे। तो इट विल बी व्हाट 0 1 1 1 1 4 0 0 1 0 4 0 1 0 0 4। अब इससे देखो 4/4 को कैसे सॉल्व करेंगे आप, डिटरमिनेंट क्या करना पड़ेगा, पहले आप 0 के वही साइन फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस, तो 0 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे आप पहले, तो क्या आएगी डिटरमिनेंट 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4, ठीक है, ये आएगा फर्स्ट। देन माइनस -1 1 टाइम्स लिखेंगे, तो इसका रो हाइड कर लिया हमने 1 0 0, इसका डिटरमिनेंट लिखा है 140 140 और 104 104। देन प्लस 1 टाइम्स, प्लस इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे एंड देन टाइम कम है तो मैं इसे जल्दी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आप Okay, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग -148 व्हिच इज दैट, सो बोथ आर नेगेटिव। ये कंडीशन थी मिनिमम के लिए कि ऑल द माइनर्स शुड बी नेगेटिव, सो ऑल आर नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट द स्टेशनरी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम। हाँ, तो यही आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है और एक ही पॉइंट था, तो इस पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू आप निकाल देंगे, हेंस मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू रख दीजिए उठा के पॉइंट पे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल गिव द पॉइंट ऑफ। तो इट इज क्लियर नाउ कि हाउ वी विल गेट इट है। इस तरीके से आपको ब्लॉक मैट्रिक्स बनानी है और फिर ये माइनस चेंज करनी है।